बुलेटिन में खुशामदीद। दहशतगर्द इसराइल की जानिब से फलस्तीनियों की नस्ल कुशी जारी। गजा में 24 घंटे के दौरान 100 से जायद फलस्तीनी शहीद कर दिए गए, 500 से जायद जख्मी हैं। शुहदा में इमदाद के मुतलाशी 34 अफराद भी शामिल हैं। गुज़श्ता हमलों के नतीजे में तबाह होने वाली इमारतों के मलबे से मजीद 13 लाशें निकाल ली गईं। 7 अक्टूबर 2023 से अब तक गजा में 59,219 फलस्तीनी शहीद, 1.5 लाख के करीब जख्मी और माजूर हुए। सूखे जिस्म, बेनूर आंखें, आहिस्ता आहिस्ता बुझती सांसें। गजा में बच्चे बेरहम जंग के साए में भूख, प्यास और दवा की शदीद किल्लत ने इंसानी बहरान को हौलनाक शक्ल दे दी है। गासिब इसराइली फौज की जुल्म की वजह से मौत हर दरवाजे पर दस्तक देने लगी। अस्पतालों में लागर माओं की गोद में भूख से बिलखते बच्चे मौत की आगोश में जाने लगे। अब तक 111 अफराद भूख से दम तोड़ चुके हैं, ज्यादातर बच्चे हैं। गजा की गलियों में अब कहकहों की जगह सन्नाटा और माओं की आहो बिका है। क्या फलस्तीनी जिंदगियां बचाने के काबिल नहीं? फलस्तीनी मंदूब का सलामती काउंसिल से दर्दनाक सवाल। कहा, गजा में मंसूबा बंदी करके कहत पैदा किया गया। रोज गजा से पैगामात आते हैं, हम भूखे हैं, मर रहे हैं, मदद करें। गजा के बच्चों को क्या जवाब दें कि दुनिया सिर्फ देख रही है? क्या इसराइल को फलस्तीनियों की जिंदगी और मौत पर मुकम्मल इख्तियार हासिल है? 4-year-old Razan fought for as long as she could, but her body gave up and she died of malnutrition on Sunday. Yesterday, 6-year-old Yusuf died of starvation. He was among 15 people to starve to death in the last 24 hours in Gaza. Israel has destroyed everything, their lives, their homes, the mosques and the churches, the schools and the hospitals, the entire infrastructure of life, and even the cemeteries. But make no mistake, the real target is the 2 million Palestinians who remain in Gaza. For Israel, their destruction is required for its scheme to take over the land. Netanyahu and his government are actively pursuing transforming Gaza into a land without a people through genocide and ethnic cleansing under the unconvincing disguise of voluntary migration has only been made possible by the impunity they enjoy. People are being gunned down and murdered by Israeli soldiers for merely trying to get a bag of flour or lentils to feed their families, again by design. Every day now, we receive heart-wrenching messages from Gaza with few words. I am hungry. There is no food for my family. We are dying. Help us. What should we tell them? What should the Security Council tell them? That the whole world is against this starvation policy and yet it is worsening. That no one wants to see people in Gaza starving and yet the world watches on as they die of hunger and thirst. Should we read to them the strong statements issued or the resolutions adopted? What should we tell them? That the negotiations for a ceasefire continue and that in the meantime Israel has been given a right to massacre them and to deny them aid to life? Is that what international law stipulates? Is that what humanity dictates? Every single country will be asked, what did you do during this genocide? गजा में हर तरफ भूख और अफलास के डेरे हैं। सलामती कौंसिल मसला फलस्तीन के हल में अपना किरदार अदा करे। नायब वजीर आजम इसहाक डार का सलामती कौंसिल में इजहार ख्याल। पाकिस्तान की जेर सदारत मसला फलस्तीन पर मुबाहिसे में नायब वजीर आजम ने कहा, गजा में इंसानियत का कत्लेआम हो रहा है। गजा में इंसानी इमदाद की बिला तातुल फराहमी फौरी मुमकिन बनाई जाए।
پاکستان مسئلہ فلسطین کے لیے اصولی موقف اور یکجہتی کے عزم کا اعادہ کرتا ہے۔ اسحاق نے کہا پاکستان شام میں پائیدار استحکام کی حمایت کرتا ہے۔ ایران پر اسرائیلی جارحیت انتہائی باعث تشویش ہے۔ Gaza has become graveyard for innocent lives as well as for the international law. Over 58,000 Palestinians, most of them women and children, have been killed in Israel's brutal military assault. The systematic targeting of hospitals, schools, UN facilities, aid convoys, and refugee camps. The hunger crisis in Gaza has reached unprecedented and deeply alarming levels. The Palestinian question is a litmus test for the credibility of the United Nations. The Security Council must live up to its responsibility and ensure compliance with its own decisions. Pakistan reaffirms its unwavering and principled support and solidarity with the Palestinian people and their right to a viable, sovereign, and contiguous state of Palestine based on the pre-1967 borders with Al-Quds its capital. 2016 کے امریکی صدارتی انتخابات میں صدر ٹرمپ کے روس کے ساتھ گٹھ جوڑ کے الزامات وائٹ ہاؤس نے صدر اوباما اور ان کے انٹیلیجنس اہلکاروں کی بڑی سازش قرار دیتے ہوئے دستاویزی ثبوت جاری کر دیے۔ اس حوالے سے وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ اور ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گبارڈ نے ایک مشترکہ پریس کانفرنس کی۔ تفصیل بتا رہے ہیں بیورو چیف واشنگٹن ڈی سی جہاں زیب علی۔ پہلے ہی وائٹ ہاؤس کی ترجمان کیرولائن لیوٹ نے تلسی گیبرٹ کے ساتھ جو کہ ڈائریکٹر ہے نیشنل انٹیلیجنس کی، ان کے ساتھ ایک پریس کانفرنس سے خطاب کیا ہے۔ پریس کانفرنس میں ڈائریکٹر نیشنل انٹیلیجنس تلسی گیبرٹ بھی موجود تھی جنہوں نے صدر اوباما کے دور میں جو صدر ٹرمپ کے خلاف سازشیں کی گئیں اور 2016 کے انتخابات کے اندر جو ان پر الزامات لگائے گئے روس کے ساتھ ملی بھگت کے، اس سب حوالے سے دستاویزی ثبوت پیش کیے ہیں، جس میں یہ اس بات کو ثابت کرنے کی کوشش کی گئی ہے کہ صدر براک اوباما، ہیلری کلنٹن، CIA کے ڈائریکٹر جان برینن، FBI کے ڈائریکٹر جیمز کومی سمیت جتنی بھی انٹیلیجنس ایجنسیوں کے جو افسران تھے وہ صدر اوباما کے ساتھ مل کر صدر ٹرمپ کے خلاف ایک سازشی ایک تحقیقاتی رپورٹ تیار کی جو کہ بالکل جھوٹی تھی۔ اس پریس کانفرنس میں کیرولائن لیوٹ نے یہ کہا حقیقت روس جو ہے وہ ہیلری کلنٹن کی کامیابیوں کے لیے کوششیں کر رہا تھا۔ تلسی گیبرٹ نے یہ بھی کہا کہ انٹیلیجنس کمیونٹی کو سیاست میں نہیں گھسیٹنا چاہیے۔ صدر ٹرمپ جو ہے اس فراڈ میں ملوث تمام افراد کا احتساب چاہتے ہیں، ایسا کہنا تھا کیرولائن لیوٹ کا۔ تو ایک بڑا نیا پنڈورا باکس کھول دیا گیا ہے اور ان سے یہ سوال ہوا کہ کیا ٹرمپ انتظامیہ جو ہے وہ صدر براک اوباما کے خلاف کوئی مقدمہ دائر کرے گی اور انہیں عدالتیں لے کے جائے گی، تو اس پر تلسی گیبرٹ نے کہا کہ اس بات کا فیصلہ امریکی محکمہ انصاف کرے گا۔ ایک سوال پر کیرولائن لیوٹ نے یہ بھی کہا کہ خصوصی نمائندہ وٹکاف جو ہے اس وقت یورپ میں مشرق وسطیٰ کے ساتھ پارٹنر کے ساتھ مل کر غزہ کے اندر جنگ بندی کی کوششیں کر رہے ہیں۔ خبر ہے لاہور سے جہاں پہ چوری کی بڑی واردات ہوئی ہے۔ اچھرا میں چمڑے کے گودام سے ملازم نے 3.5 کروڑ روپے سے زائد کی جیولری اور نقدی چرا لی۔ مزید کیا تفصیلات جانیں گے اپنے نمائندے احمد کھوکر سے۔ احمد بتائیے گا۔ ہاں جی بالکل، یہ لاہور کے علاقہ اشرا ہے جہاں پر ایک لیدر کے گودام میں چوری کی بڑی واردات ہوئی ہے، جہاں پر گودام کا جو ملازم ہے اس نے تقریباً 110 تولے سونا اور 10 لاکھ روپے سے زائد کی نقدی اور اسلحہ جو ہے وہ چرا لی ہے، اور اس حوالے سے جو مقدمہ ہے وہ بھی تھانہ اشرا میں درج کر لیا گیا ہے۔ پولیس نے جو نواب قریشی ہیں جو کہ گودام کے لیدر کے گودام کے مالک ہیں، ان کی درخواست پر افتخار جو ملزم ہے اس کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے، اور پولیس کا کہنا ہے کہ جو گودام کے اندر CCTV فوٹیجز لگی ہوئی تھی اس میں باقاعدہ طور پر دکھائی دے رہا ہے وہ ملزم، اور اس کے حوالے سے تلاش بھی شروع کر دی ہے۔ پولیس نے اکاڑا اور شیخوپورہ سمیت دیگر علاقوں میں جو ہے وہ ریڈز بھی کی ہیں، اور پولیس کا کہنا ہے کہ جلد ملزم کو گرفتار کر کے جو سونا اور نقدی ہے اس کو برآمد کر لیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، ہمارے سوال سے آگاہ کر رہے تھے، شکریہ آپ کا۔ بلوچستان میں قتل ہونے والی خاتون کی ماں سامنے آ گئی۔ بانو کی ماں نے کہا بیٹی کو رسم و رواج کے مطابق سزا دی گئی، سردار بے قصور ہے۔ مقتولہ کی والدہ کا بیان قانونی، سماجی اور صحافی حلقوں نے مسترد کر دیا۔ تمام ملزموں کو کڑی سزا دینے کا مطالبہ بھی کیا۔ بلوچستان میں خاتون اور مرد کا قتل، بانو کی ماں نے ہی بیٹی کا قتل جائز قرار دے دیا۔ بانو کی ماں نے کہہ دیا سردار یا کسی اور کا کوئی قصور نہیں، انہیں رہا کر دیا جائے۔ مقتولہ کی ماں نے ویڈیو بیان میں کہا ہے بانو کو بلوچی رسم و رواج کے مطابق سزا دی گئی۔ فیصلے میں سردار شیرباز ساتکزئی کا قصور نہیں، گرفتار کیے گئے افراد رہا کیے جائیں۔
خنا کرے بندہ تن قصور کے گرفتار کرے نستا خنا سردار نن قصور سے کہ گرفتار کرے نستا کرے دا فیصلے نے سردار تے تم کرے نو نمیر متبت تم کرے نو نے عدالت تک کرے نو ننتنا بلوچی کرے رسم کرے نو کرے. صحافیوں اور سماجی کارکنوں کا کہنا ہے کوئی رسم یا روایت ایسے واقعات کو جائز قرار نہیں دے سکتی. سینئر اینکر پرسن ماریا میمن نے کہا والدہ کا بیان بتاتا ہے کسی کو سزا نہیں ہوگی. سماجی رہنما فرزانہ باری نے کہا کہانیاں نہ سنائی جائیں, شواہد کی بنیاد پر ملزم کو سزا دی جائے. کیا مجھے لگتا ہے منطقی انجام پہ پہنچے گا, کوئی سزا ملے گی؟ ہرگز نہیں ملے گی. والدہ کا آج کا بیان سب سے پہلی کڑی ہے اس سلسلے میں کہ سردار کو نہ صرف معاف کیا جائے گا لیکن اس لڑکی کا کردار مرنے کے بعد بھی تار تار کیا جائے. ایک کرائم کمٹ ہوا ہے, ایک ظلم ہوا ہے, اس ظلم کے اندر جو بھی لوگ شامل ان کو کیفے کردار تک پہنچایا جائے. وکیل لیاقت گبول کا کہنا ہے اگر مجرموں کو چھوڑ دیا گیا تو ایسے واقعات کو روکنا مشکل ہو جائے گا. اس وقت جو نا سردار کو بچانے کی کوشش کی جا رہی ہے, یہ ایک انتہائی افسوسناک واقعہ ہے. 2 انسانوں کا سرعام قتل کیا گیا اور اسی طرح ان کو چھوڑ دیا گیا, تو آئے دن اسی طرح کے فیصلے ہوں گے. جو سردار ہے اس کے اندر وہ برابر کا ملوث ہے. علماء نے ڈگاری میں مرد عورت کا قتل شریعت کے خلاف قرار دے دیا. پاکستان علماء کونسل نے مقتول خاتون کی والدہ کا بیان بھی قرآن و سنت کے منافی قرار دیا. پاکستان علماء کونسل کے چیئرمین حافظ طاہر اشرفی نے کہا بیان ظاہر کرتا ہے قتل میں والدین کی مرضی شامل تھی. والدین قتل میں ملوث ہیں تو انہیں بھی گرفتار کیا جائے. شریعت کا حکم ہے ظلم میں کوئی قریبی عزیز بھی شامل ہو تو اسے سزا ملنی چاہیے. مجرموں کو کیفر کردار تک پہنچانے کی ذمہ داری ریاست کی ہے. مقتولہ بلوچستان میں خاتون قتل ہوئی ہے. انتہائی افسوس کی بات ہے کہ والدین کہہ رہے ہیں ہماری بچی صحیح قتل ہوئی ہے اور اس کا قتل جائز ہے. شریعت اسلامیہ پاکستان کا آئین اور قانون اس کی اجازت نہیں دیتا, لہذا یہ شرعاً بھی قانوناً بھی والدین کا بیان درست نہیں ہے. حکومت بلوچستان سے اور چیف جسٹس بلوچستان ہائی کورٹ سے پاکستان علماء کونسل کی طرف سے میں مطالبہ کرتا ہوں اگر والدین بھی اس قتل میں ملوث ہیں تو ان کو بھی گرفتار کیا جائے. والدین ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اپنی اولاد کو خود اپنے ہاتھوں سے قتل کروا دیں یا ان کے قتل کو جائز قرار دلوا دیں. ڈگاری میں خاتون اور مرد کا قتل. کوئٹہ کی انسداد دہشت گردی عدالت نے نامزد ملزم سردار شیرباز ساتکزئی کا 10 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا. عدالت نے ملزم سردار شیرباز ساتکزئی کو 10 روزہ جسمانی ریمانڈ پر SCIW کے حوالے کر دیا. انسداد دہشت گردی عدالت کے جج محمد بمبید نے کیس کی سماعت کی. ساتکزئی قبیلے کے سردار شیرباز پر الزام ہے کہ انہوں نے مرد اور خاتون کے قتل کا حکم جاری کیا. الزام ہے کہ آپ نے قتل کا فیصلہ دیا ہے. تھوڑا رستہ دے دیں پلیز. رستہ دو بھائی, رستہ دو. سردار صاحب اسوات کی تحصیل خواجہ خیلا کے مدرسے کے تمام استادوں کو مدرسے کے دوسرے بچوں پر بھی تشدد کے شواہد ملے ہیں. DPO اسوات محمد عمر خان نے مقتول فرحان کے دادا کے ساتھ میڈیا سے بات بھی کی. فرحان کے قتل میں نامزد 4 میں سے 2 ملزم گرفتار ہیں. DPO نے بتایا کہ ایک اور FIR درج کر کے مزید 9 معلم بھی گرفتار کر لیے. مدرسے میں موجود 170 بچے والدین کے حوالے کر دیے. مدرسہ مؤخذ العلوم سے لاٹھیاں اور زنجیریں بھی ملی ہیں. سوات کے مدرسے مخزن العلوم میں لڑکے پر تشدد سے قتل کا معاملہ. مدرسے کا محتمم تاحال پولیس کی دسترس سے دور ہے جبکہ لڑکے کی ابتدائی پوسٹ مارٹم رپورٹ بھی آ گئی ہے. تفصیل کیا ہے شہزاد عالم سے جان لیتے ہیں. شہزاد آگاہ کیجیے. جی بالکل, روز جو دردناک واقعہ پیش آیا تھا اس سلسلے میں جو انکشافات ہو رہے تو اس کا سلسلہ جاری, اور ایک مدرسے کے اور بچے نے سوشل میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے اس بات کا انکشاف کیا ہے کہ جو قاری صاحبان ہیں وہ یہاں پر رات کو بچوں سے جنسی زیادتی کرتے تھے, اور جو 2 اہم ملزمان ہیں جن میں مدرسے کا محتمم مولانا محمد عمر اور ان کا بیٹا احسان ہے وہ تاحال روپوش, اور اب تک تقریباً 11 ملزمان جن میں 2 ملزمان 302 دفعہ کے تحت اور 9 ملزمان چائلڈ پروٹیکشن ایکٹ کے تحت گرفتار کیے گئے ہیں. جو میری بات ہوئی مقامی پولیس
उनका कहना है, अजीज SHO, उनका कहना है कि जो मुलजिमान है उनको 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड पर हमारे हवाले किया गया और जो तफ्तीश है, जो तहकीकात है, उनका आगाज कर देगा। मेरी बात हुई ऐसी ख्वाजा खिला लुकमान खान से, तो उनका कहना है कि जो मदरसा है वो बिल्कुल वो गैर रजिस्टर्ड था, यहाँ पर किसी किस्म के जो इदारे हैं उनके साथ इनका इल्हाक नहीं था, और जब ये वाक़या पेश आया तो उसके बाद तकरीबन मदरसे में मौजूद 200 उन बच्चों को वालिदैन के हवाले कर दिया गया। लेकिन ये मोहतमिम और उनका जो बेटा है वो कहाँ चले गए? इलाका तो इतना कोई बड़ा नहीं है, इनका कोई ट्रेस मिल सका अभी तक? जी बिल्कुल, जो मोहतमिम है मौलाना मोहम्मद उमर और उनका बेटा एहसान, वो वाक़े के बाद रोपोश हो गए, और इस वक्त भी पुलिस चालियार के बालाई इलाकों, ख्वाजा खेला, मदेन और दीगर इलाकों में पिया में मौजूद है और उन पर छापे मारे जा रहे हैं। लेकिन उनके बच्चों और उनके खवातीन को भी पुलिस ने हिरासत में लेकर पुलिस स्टेशन मुंतकिल कर दिया गया है, लेकिन अमल में नहीं लाई गई। जो मदरसा है उनको सील कर दिया गया, और एसी के मुताबिक जो लुकमान खान है उनके मुताबिक जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है, इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ गई है, और उनमें साबित हो गया कि बच्चे को शदीद तशद्दुद का निशाना बनाया जाता रहा है। इब्तिदाई पोस्टमार्टम रिपोर्ट सामने आ गई है। मदरसे का मोहतमिम और उसका बेटा अब भी फरार हैं। शहजाद आलम अपडेट कर रहे थे, बहुत शुक्रिया। बच्चे ने घर में जो बातें बताई सबके सामने नहीं बता सकता। स्वात में तशद्दुद से जाँ बहक मदरसे के तालिब इल्म के दादा की मीडिया से गुफ्तगू। उन्होंने कहा कि बच्चे ने बताया, मदरसे के कारी साहिबान मुझसे गलत काम करवाना चाहते हैं, इस मदरसे में नहीं पढ़ना चाहता। बच्चे के चाचा ने मदरसे वालों से बात की, उसके निकलते ही असातिज़ा ने बच्चे को मारना शुरू कर दिया। बच्चे को अगर गोली से कत्ल किया होता तो अफसोस ना होता, लेकिन उसको इतना मारा पीटा के सारे जिस्म पर जख्मों के निशानात थे। कम मजबूत फायर कट को है ना, और पागे बंदूक कार्रवाई शुरू करा। मासूम की कम कल रागे गलत थ्रो वादे वो इशार शो दा कम वजाहत से पकोर की कड़ी का ना आवाज होता है मीडिया के लिए शमकौल है। जमाना कारियान साहिबान दे वो गलत डिमांड कई ज़्यादा का मदरसा की सबक न मिलवाना। पुलिस रात्रि पर गाड़ी के केना लोग दागा वखना बदे मासूम शुरू करा, वो कदे पदे तब तमाशे में चल रहे थे एकदम मरो दगद अफसोस खबर न हुआ। उदू पर तशद्दुद सर कर ले तासो बलदले बदे मीडिया बांधे कि यवा इंच दे बगैर दे मकसद लाकिए न हिदाय रोगावा नूर पर यवा इंच दे रोग न। स्वात के मदरसे में तलबा के साथ जो वाक़या पेश आया वो इंतहाई अफसोसनाक है। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी कहते हैं, इस किस्म के वाक़यात पर जब तक अदालतें सख्त सजाएं नहीं देंगी रोकथाम मुश्किल है। जो वाक़ हुआ बड़ा अफसोसनाक वाक़ है। इस किस्म के वाक़यात मदरसों में और उसमें हो तो इस पे जो है जब तक हमारे अदालतें सज़ाएं सख्त नहीं होंगी इस वक्त तक ऐसी चीज़ें नहीं हो सकती। वाक़यात होते हैं, 2-3 दिन मीडिया पे चलते हैं, उसके बाद कोई पूछने वाला नहीं होता। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक। बाबूसर पर फंसे सयाह और मुसाफिर महफूज मकामात पर मुंतकिल। 250 के करीब सयाह रेस्क्यू कर लिए गए। 10 से 15 अफराद अब भी लापता हैं, जिनकी तलाश जारी है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत फैजुल्लाह फिराक कहते हैं, माजी में भी शाहराह बाबूसर पर रैले आए, लेकिन ऐसा नुकसान कभी नहीं हुआ। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान ने सयाहों से गिलगित का सफर मुअख्खर करने की अपील कर दी। गिलगित बल्तिस्तान में क्लाउड बर्स्ट, सैलाबी रेले और लैंड स्लाइडिंग सब कुछ मलियामेट। चलास में अब भी कई सयाह लापता हैं, तलाश जारी है। तालाब से गर्ल्स स्कूल, 2 होटल, पुलिस चौकी, पुलिस शेल्टर, शाहराह बाबूसर से मुत्तसिल मकानात मुकम्मल तबाह हो गए। 2 मसाजिद भी शहीद हुई, 4 राब्ता पुलों को भी नुकसान पहुंचा। बारिशें यहाँ हर साल होती हैं, डिजास्टरियस इलाका है गिलगित बल्तिस्तान। हम ये पहली दफा शाहराह बाबूसर में इस तरह का सैलाब आया है तारीख का। गवर्नमेंट ने अपनी बिसात से बढ़ के यहाँ पे रेस्क्यू किया है। तर्जुमान गिलगित बल्तिस्तान हुकूमत कहते हैं, माजी में भी शाहराह बाबूसर पर रेले आते रहे, लेकिन ऐसा नुकसान कभी नहीं हुआ। PDMA का कहना है, मुकामी अफराद और सयाह दरियाओं और नदी नालों से दूर रहें। खैबर पख्तूनख्वा के अजला स्वात, बुनेर, मर्दान और मालाकन में मूसलाधार बारिश ने तबाही मचा दी। नदी नालों में तुग़यानी आने से पानी करीबी आबादियों में दाखिल हो गया। मर्दान में सैलाब जैसी सूरत हाल है, सड़कें ज़ेर आब आने से कई गाड़ियां फंस गईं। तख्त भाई के नवाही इलाके में दुकान की छत गिरने से 2 बच्चे जख्मी हो गए। बुनेर में पानी ग्रिड स्टेशन में दाखिल हो गया। ज़िले भर में बिजली मुनक़ता हो गई। बटखेला के बरसाती नाले में पानी का बहाव बढ़ गया। PDMA का कहना है, 2 दिन में मुख्तलिफ हादसात में 6 बच्चों और 2 ख़वातीन समेत 10 अफराद जाँ बहक हुए।
पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में मूसलाधार बारिश ने आवाम की मुश्किलात बढ़ा दी। नशेबी इलाके डूब गए, सड़कों, गलियों और मोहल्लों में पानी ही पानी। कई इलाके बिजली से महरूम हो गए। पंजाब में बारिशों का तूफानी स्पेल, नशेबी इलाकों और सड़कों पर पानी ही पानी, शहरियों को शदीद परेशानी। चिन्योट में बारिश से मकान की छत गिर गई, 3 अफराद जख्मी हो गए। नारोवाल में मूसलाधार बारिश से गली मोहल्लों और बाजार पानी से भर गए हैं, सड़कें भी डूब गईं। उकाड़ा, हुजरा शाह मुकीम और गिरदोनवा में भी बारिश हुई, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। फिरोजवाला में भी बारिश मुश्किलात साथ लाई, गलियां और सड़कें तालाब बन गई। पसरूर में भी सूरत हाल मुख्तलिफ नहीं, सड़कें और गलियों में बारिश का पानी जमा होने से आमद और रफ्त दुश्वार हो गई है। सराय आलमगीर में भी बादल जमकर बरसे, चीचावतनी, खुशाब, खानेवाल और गिरदोनवा में भी बारिश ने जल थल एक कर दिया। मुख्तलिफ इलाकों में बिजली का निज़ाम दरहम बरहम हो गया। वज़ीर आला पंजाब सैलाब से पैदा सूरत हाल का जायजा लेने ननकाना साहब के देहात पहुँच गए। मरियम नवाज ने मजीद 2 फ्लड ड्रेन बनाने का ऐलान किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने ननकाना शहर और देहात का 2.5 घंटे तवील दौरा किया। ननकाना साहब में सड़कों और दीगर तरक्याती मंसूबों की जल्द तकमील की हिदायत की। मरियम नवाज ने जसलानी मोड़ में सैलाब से मुतासरा मकानों और ज़रई अराजी का भी मुआयना किया। उन्होंने मीरापुर गाँव में PDMA की जानिब से इमदादी सामान की तकसीम का आगाज़ किया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने मीरापुर को मिसाली गांव बनाने का ऐलान भी किया। लाहौर में बादल बरसे, 2 घंटे बारिश होती रही, सड़कें पानी में डूबी, गाड़ियां बंद हुई, देखते ही देखते पानी निकल गया, सड़कें साफ हो गईं। शहरियों ने इंतजामिया की तारीफ की कि अब तो कहीं पानी नहीं। लाहौर में बादल 2 घंटे जमकर बरसे, कई सड़कें तालाब बन गईं, गाड़ियां और मोटरसाइकिलें बंद हो गईं, शहरियों को परेशानी का सामना रहा। इधर के इतने बुरे हालात है, हर दफा ऐसा ही होता है। यहाँ पे जौहरालाई रोड पे खड़े हुए हैं, इधर पानी का इतना रश है, अल्लाह माफ करे। हॉस्पिटल जा रहे हैं दवाई लेने के लिए, तो हम लेट हो गए हैं पानी की वजह से। बारिश से ज़हूर इलाही रोड, गुलबर्ग, वाल्टन, गाजियाबाद, ताजपुरा, इछरा और शाहजमाल समेत मुतादिद इलाके पानी पानी हो गए। वासा ने बताया सबसे ज्यादा बारिश एयरपोर्ट पर 108 और ताजपुरा में 105 मिलीमीटर रिकॉर्ड की गई। वज़ीर आला मरियम नवाज की हिदायत पर जिला इंतजामिया और वासा के अमले ने फौरी इक़दामात किए। कुछ देर में ही तमाम सड़कों से पानी निकाल दिया गया। 1 घंटा बारिश हुई है, काफ़ी पानी जमा हो गया, तकरीबन आधे घंटे से पहले सारा सफाया हो गया था। सारा पानी, कहीं पानी रुका ही नहीं है। सड़कें साफ हैं, पानी फौरी निकल गया, गाड़ी चलाने में बिल्कुल ईजी है। सुबह इतनी बारिश हुई है, अभी तो सड़कें देख के पता नहीं क्या बारिश हुई है। सूबाई वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन और डिप्टी कमिश्नर ने बारिश के दौरान मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया और नकासी आब के कामों का जायजा लिया। महकमा मौसमियात ने जुम्मे तक लाहौर समेत पंजाब के दीगर अजला में मजीद बारिश की पेशगोई की है। चीन से इलेक्ट्रिक ट्राम लाहौर मंगवा ली गई। इब्तदाई तौर पर ट्राम को ट्रायल के तौर पर कैनाल रोड पर चलाया जाएगा। सिद्रा गयास की रिपोर्ट देखिए। मेट्रो बस, ऑरेंज ट्रेन और इलेक्ट्रिक बस के बाद लाहौर की सड़कों पर इलेक्ट्रिक ट्राम चलती दिखाई देगी। 3 बॉक्सेस पर मुश्तमिल ट्राम में 200 से ज़ायद अफराद सफर कर सकते हैं। ये हमारे लाहौर के लिए एक गेम चेंजर के तौर पर साबित होगा। ट्राम की असेंबलिंग अली टाउन डिपो में की जा रही है, जिसे पहले मरहले में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर चलाया जाएगा। ये टोटल इलेक्ट्रिक ट्रेन है, इसका कोई किसी किस्म का कोई पोल्यूशन से कोई लेना देना नहीं है और कम टाइम में ज़्यादा ट्रैवल देगी। इसका जो ट्रैक इनिशियली तौर पे वो इसको कैनाल रोड पे दिया जाएगा। सुपर ऑटोनमस रैपिड ट्रांजिट सिस्टम पाकिस्तान की तारीख में अपनी नौयत का पहला मंसूबा होगा। SRT मंसूबा मुकम्मल तौर पर इलेक्ट्रिक और ग्रीन एनर्जी पर मबनी होगा। कैमरामैन दानिश नसीम के साथ सिद्रा गयास, ARY न्यूज़, लाहौर। मजीद खबरें होंगी इस ब्रेक के बाद।
ब्रेक के बाद खुशामदीद। अली अमीन गंडापुर कारकुन के करीब आने पर खफा हो गए। वजीर आला का गार्ड कारकुन को बार बार हटाता रहा। कारकुन के दोबारा करीब आने पर अली अमीन गंडापुर कारकुन से उलझ पड़े। वजीर आला ने कहा, मेरे साथ खड़े हो और कितना करीब आना है। कारकुन ने बानी पीटीआई का नाम लिया। वजीर आला को मजीद गुस्सा आ गया। अकेले वाले काम नहीं हुए, बहुत मसाइल हमें जब हम आए तो पता चले, लेकिन हमने पेशावर को एक बहुत बड़ा पैकेज दिया है जिसमें पूरे पेशावर को हमने इसमें कवर किया है कि पूरे पेशावर के अंदर चाहे जिस हवाले से भी है। यार भाईजान सर हम वर्क करें, हम खड़े तो मेरे साथ इधर आओगे तो मेरी जगह पे खड़े हो। नहीं होंगे, हम वर्क करनी है। ऐसे नहीं है ना यार, मेरे साथ तो खड़े हो आप यार। सर ये लोग हमें एक मिनट इसी वीडियो बनाओ जरा, कहाँ खड़ा था इसी ज्यादा वर्कर कहाँ खड़ा होगा, और मेरी जगह पे भी आ जाओ। ऐसे मत करो ना, मुझे भी दिखे लग रहे हैं यार, ऐसे मत करो ना यार। मेरे साथ तुम खड़े हो, मेरे साथ ये हम तो कसम से इमरान खान के साथ खड़े, ये लोग खड़े यार। ठीक है सर, ठीक है, मेरे साथ तो खड़े हो यार। जानबूझ के ड्रामा बनाने आ जाते हैं यार। तुम मेरे साथ तो खड़े हो यार, मेरे साथ ये ड्रामा मत किया करो, साथ तो खड़े हो मेरे। तो ठीक है सर, ओके सर। क्या शाह महमूद कुरैशी बाहर आकर क़यादत करेंगे? सहाफ़ी के सवाल पर सलमान अकरम राजा ने कहा, ये महज कयास आराइयां हैं। शाह महमूद के खिलाफ अभी 8-9 मुकदमे और हैं। ऐसा नहीं कि वो बाहर आ रहे हैं। उनके मुतालिक कोई गलत मफरूज़ा कायम न किया जाए कि एक मुकदमे में बरियत हो गई तो बाकी में भी हो जाएगी। देखते हैं कि शाह महमूद कुरैशी बाहर आएंगे और क़यादत संभालेंगे पीटीआई की। ये कहना बिल्कुल कबल वक्त है। शाह महमूद कुरैशी साहब के खिलाफ अभी 8-9 मुकदमात और हैं, तो ऐसा नहीं है कि वो बाहर आ रहे हैं। इसमें किसी के लिए कोई इस्तिस्ना नहीं है, लिहाजा कोई गलत मफरूज़ा ना कायम किया जाए। एक मुकदमे में अगर किसी को बरियत मिल गई है तो बाकी में भी मिल जाएगी। इसलिए अभी देखते हैं क्या होता है। जो फैसला साज हैं वो क्या करना चाहते हैं। ये एक ऐसी सूरत है जिसको हमें कबूल नहीं करना चाहिए। इसका ताल्लुक पीटीआई से नहीं है, इसका ताल्लुक पूरी कौम से है। तमाम गैर कानूनी फैसले वापस लेना होंगे। नाइंसाफी तस्लीम नहीं, अवाम की अदालत ने फैसला सुना दिया। वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर कहते हैं, गैर कानूनी गैर आइनी गिरफ्तारियां और सजाएं वो नहीं मानते। ये सजाएं अवाम की राय और पाकिस्तान के आइन पर हमला है। तहरीक इंसाफ को खत्म करने वाले आज माजी का किस्सा बनते जा रहे हैं। वो हर कीमत पर सच के साथ खड़े हैं, कुर्बानी देने के लिए तैयार हैं। अली अमीन गंडापुर ने यह भी कहा, 5 अगस्त से तहरीक शुरू होगी। हर शहर और यूसी में बानी पीटीआई का पैगाम पहुंचाएंगे। न्यूज बुलेटिन से फिलहाल इतना ही।